Hello student, very good morning to all. Today in this video we will discuss about the different types of computer generation of computer. So here mostly the computer generation have divided in 5 categories, and each category have invented a different types of devices. So first we will discuss about the first generation of computer. So here the time period of this first generation of computer is 1940 to 1956. Means this type of devices are used in this period. Means starting time is 1940 and the finishing time is 1956. Then after that this 1956 the another device are used in a computer history. So the first we will discuss about the what is the means of this first generation and what is the name of this device. So here this is an example of vacuum tubes. So here the basic information about the is vacuum tube. So here vacuum tube was used in system. Means in the first generation of computer we are used a vacuum tubes. Means first generation computer में हम क्या use करते थे? Vacuum tubes. So here the system were unreliable and supported machine language only. So this type of systems has only supported the machine language. Means machine language means this type of system is only understand the machine language means 0 or 1. And the third point is they generated a lot of heat, so they required air conditioner every time, which in turn required much electricity. Means इस टाइप के जो सिस्टम होते थे वो क्या करते थे, बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करते थे, और इनके लिए जब ये बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करते थे मीन्स काफ़ी ज़्यादा गर्म होते थे जब ये वर्क करते थे. तो इस कंडीशन में इस मशीन में हमें एक प्रकार से एयर कंडीशनर की हमेशा ज़रूरत पड़ती थी. मीन्स जब भी हम इस मशीन को स्टार्ट करते थे तो उस टाइम पे हमें कंपलसरी ये था कि हमें एसी ऑन करना चाहिए, अदरवाइज ये सारा सिस्टम क्या हो जाएगा, फेलियर हो जाएगा. Then after that the fourth point is they were very costly and huge in size which made them non portable. Means इस टाइप के जो सिस्टम होते थे काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होते थे और इनका जो साइज होता था काफ़ी ज़्यादा बड़ा साइज होता था. जैसे कि यहाँ पे जो वैक्यूम ट्यूब बने हुए हैं तो इसका जो साइज है काफ़ी बिग साइज है. तो इसके वजह से क्या होता था कि ये काफ़ी ज़्यादा स्पेस कवर करते थे. और उसके बाद ह्यूज इन साइज विच मेड दैम नॉन पोर्टेबल. मीन्स ये एक जगह फिक्स रहते थे, इनको हम बार बार एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट नहीं कर सकते थे. देन आफ्टर दैट वी विल टॉक अबाउट द सम एग्जांपल ऑफ दिस टाइप ऑफ कंप्यूटर. सो हियर दिस टाइप ऑफ कंप्यूटर हैव ENIAC, ADVAC, UNIVAC, IBM 701 and IBM 650. So these are an example of this first generation of computer. Now after that we will discuss about the second generation of computer. So here this is the second generation of computer, and this second generation of computer is time period is 1956 to 1963. So this is the time period of this second generation of computer, and then after we will talk about the which device we are used in this second generation. So here this is a transistor. So with the help of this device the second generation computer have very less size. So and here some points are given, so we are discuss about each point. So here the first point is the use of transistor which made them more reliable as compared to the first generation computer. Means इस जो सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में हमने क्या यूज किया था कि मीन्स ये ट्रांजिस्टर होता था जिसकी वजह से कि जो काफ़ी ज़्यादा सिस्टम क्या हो गया, रिलायबल हो गया कंपेयर देन द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर. एंड द सेकेंड पॉइंट इज दे वी आर स्मॉलर इन साइज. मीन्स इसका जो साइज होता था ट्रांजिस्टर का काफ़ी स्मॉल होता था, इसकी वजह से क्या हो गया कि कंप्यूटर का ऑटोमेटिक साइज भी कम हो गया. देन कंज्यूम्ड लेस इलेक्ट्रिसिटी. और जो ट्रांजिस्टर होता था, ट्रांजिस्टर क्या करता था कंपेयर देन वैक्यूम ट्यूब. मीन्स काफ़ी कम इलेक्ट्रिसिटी की इसको मतलब ज़रूरत पड़ती थी, मीन्स कंज्यूम करता था. देन आफ्टर दैट वर्क फास्टर एंड जनरेटेड लेस हीट एज कम्पेयर टू द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर बट स्टिल रिक्वायर्ड एसी. मीन्स इस टाइप के जो कंप्यूटर होते थे इसके लिए भी हमें एसी की मीन्स एसी की हेल्प पड़ती थी. तो इसमें हमें क्या होता था, जैसे कि जो ट्रांजिस्टर जब भी हम स्टार्ट करते थे या फिर ट्रांजिस्टर इस डिवाइस का यूज जब भी हम सिस्टम में हमने किया तो उस टाइम पे क्या हुआ कि मीन्स दे वेयर स्मॉल इन साइज की सिस्टम का साइज कम हो गया, और उसके बाद ऑटोमेटिक उसका जब साइज कम हो गया तो उसका जो इलेक्ट्रिसिटी भी उसने कम कंज्यूम किया, और उसके बाद उसका जो स्पीड था सिस्टम का वो ऑटोमेटिक क्या हो गया, इंक्रीज हो गया. और उसके बाद जनरेटेड लेस हीट. मीन्स ट्रांजिस्टर की हेल्प से जो उसका
इसने जो हीट प्रोड्यूस करता था बहुत ही कम हीट प्रोड्यूस करता था, बट इस टाइप के जो सिस्टम थे इसमें भी हमें जब भी हम सिस्टम को स्टार्ट करते थे उस टाइम पे हमें एसी की जरूरत पड़ती थी. देन आफ्टर दैट द नेक्स्ट पॉइंट इज दे वे स्टिल वेरी कॉस्टली टू परचेज फॉर एन इंडिविजुअल पर्सन. मीन्स इस टाइप के जो सिस्टम होते थे ये भी काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होते थे. अगर बाय द वे अगर हम बात करें कि इंडिविजुअली अगर पर्सन को इसको इस सिस्टम को परचेज करना है तो उस टाइम पे इंडिविजुअली पर्सन एक इस टाइप के सिस्टम को परचेज नहीं कर सकता था क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होते थे. देन आफ्टर दैट द फोर्थ पॉइंट इज it supported machine and assembly language. Means in the first we will talk about the first generation of computer. So the first generation of computer only support the machine language. Means machine language means the computer has understand only the 0 and 1, but with the help of this transistor the machine support the machine language as well as assembly language. Then after that we will talk about the which type of an example of this type of second generation of computer. So here the some example of the second generation computers here: IBM 1620, IBM 7094, CDC 1604 या CDC 3600 या UNIVAC 1108. So these are an example of this second generation of computer. Now after that we will discuss about the next generation of computer is the third generation of computer. So here this third generation of computer is time period is 1964 to 1971, and in this third generation of computer we are use the IC. So IC stand for integrated chips. So here IC we are used which made computer more reliable, smaller in size and faster. Means IC की हेल्प से क्या हुआ कि इस टाइप के जो थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर थे तो उस टाइम पे जब आईसी का यूज किया गया तो उस टाइम पे क्या हो गया कि इस कंप्यूटर का स्पीड इंक्रीज हो गया. मींस फास्ट स्पीड हो गया, साइज कम हो गया और काफ़ी ज़्यादा रिलायबल हो गया. देन आफ्टर दैट द सेकंड पॉइंट इज इट जनरेटेड लेस हीट. मींस आईसी की हेल्प से क्या हुआ कि वो जो सिस्टम होते थे वो काफ़ी कम हीट प्रोड्यूस करते थे. एंड देन आफ्टर कंज्यूम लेस इलेक्ट्रिसिटी, और काफ़ी कम इलेक्ट्रिसिटी की उनको जरूरत पड़ती थी. मींस जब सिस्टम स्टार्ट होता था. सो विच इन टर्न रिक्वायर्ड लेस मेंटेनेंस. मींस इसकी वजह से क्या हो गया कि सिस्टम का मेंटेनेंस कम हो गया. देन द सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर मींस सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की तुलना में मींस कंपैरिजन में. सो बट वी आर स्टिल कॉस्टली एंड रिक्वायर्ड एसी. मींस इस टाइप के जो थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर थे वो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली थे और इस टाइप के सिस्टम के लिए भी अभी भी एसी की जरूरत पड़ती थी. मींस जब भी हम स्टार्ट करते थे. देन आफ्टर दैट द फोर्थ पॉइंट इज या नेक्स्ट पॉइंट, सो इट सपोर्टेड हाई लेवल लैंग्वेज. मींस इस टाइप के जो सिस्टम होते थे वो मोस्टली क्या मींस हाई लेवल लैंग्वेज को सपोर्ट करते थे. मींस हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है जो मोस्टली हम लोग वर्ड कम्युनिकेशन में यूज करते हैं. देन आफ्टर दैट द नेक्स्ट पॉइंट इज some example of this generation of computer where IBM 360 series, so Honeywell 6000 series या personal data processor. So these are an example of the third generation of computer. Now after that we will talk about the fourth generation of computer. So here this is the fourth generation of computer, and here the time period is 1972 to present. Means in this time we are mostly used in this fourth generation of computer. So here this is a VLSI chip. So what is the use of this VLSI and what is the full form of this VLSI? So here it is used very large scale integration. So this is a stand for of VLSI. So very large scale integration technology which was very cheap, portable and reliable. जो कि काफ़ी ज़्यादा सस्ती है, पोर्टेबल है. मीन्स इसको हम पोर्टेबल कर सकते हैं और काफ़ी ज़्यादा रिलायबल है. मीन्स द नेक्स्ट पॉइंट इज इट बिकम easily accessible to consumer or people to use them as personal computer. Means इस कंप्यूटर का इस डिवाइस का यूज कोई भी कंज्यूमर या पीपल easily कर सकता है फॉर पर्सनल कंप्यूटर के लिए. देन आफ्टर दैट द नेक्स्ट पॉइंट इज द साइज वाज रिड्यूस. मीन्स VLSI की यूज से क्या हो गया कि सिस्टम का साइज काफ़ी कम हो गया एंड रिक्वायर्ड पाइपलाइन प्रोसेसिंग, एंड फॉर द फर्स्ट टाइम द कंप्यूटर डिड नॉट रिक्वायर्ड एसी. मीन्स फर्स्ट टाइम जब VLSI टेक्नोलॉजी आई तो उस टाइम पे हमारे कंप्यूटर को कोई भी एसी की जरूरत नहीं पड़ी. देन आफ्टर दैट द नेक्स्ट पॉइंट इज द कंप्यूटर बिकम इजिली अवेलेबल. मीन्स इस टाइप के जो कंप्यूटर होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा इजिली अवेलेबल हो जाते हैं. इंटरनेट वाज इंट्रोड्यूस टू द जनरल पब्लिक एंड सम मेजर डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ नेटवर्क हैपेंड ड्यूरिंग दिस टाइम. देन इफ वी विल टॉक अबाउट द some example of this type of computer. So some computer of this generation were DEC 10, Star 1000,
PDP-11, Crave 1. So these are an example of this fourth generation of computer. Now after that we will talk about the fifth generation of computer. Yeah, this is the last generation of this computer. So fifth generation of computer, what is the end here? The time period is present, means now present time, and beyond means इसके बाद भी अभी भी यही फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर वर्क करेंगे. मीन्स द VLSI टेक्नोलॉजी हैज बिकम अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन. मीन्स जो VLSI टेक्नोलॉजी से भी काफी ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी क्या है, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन. सो टेक्नोलॉजी रिजल्टिंग इन द प्रोडक्शन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर चिप्स हैविंग 10 मिलियन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, जो कि 10 मिलियन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट से मिलकर बनी होती है. देन आफ्टर दैट द सेकंड पॉइंट इज दिस जनरेशन इज वर्किंग ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विच इंक्लूड रोबोटिक्स, न्यूरल नेटवर्क्स या गेम प्लेइंग एक्सेट्रा. मीन्स इस टाइप की जो जनरेशन जो कंप्यूटर होते हैं वो मोस्टली क्या कहाँ पे यूज करते हैं, मीन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मीन्स रोबोटिक्स बनाने में या फिर न्यूरल नेटवर्क्स में, या फिर गेम्स, जो भी हम गेम्स डेवलप करते हैं तो इस टाइप के जो फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर होते हैं वो मोस्टली यूज किए जाते हैं फॉर दिस टाइप ऑफ टास्क. Then after that the next point is in this generation development of expert system, it is focused to make decision in real life situation easy for understanding natural language. So this is a basic information about the all the different types of computer generation. So I hope this video to help you to understand each generation. So thanks for watching this video.